students, welcome back to the IMT YouTube channel. In today's lecture of CAL, we will be studying about computer architecture input-output processor. So let's start. An input-output processor is a processor with direct memory access capabilities. जो आपका input-output processor होता है, वो प्रोसेसर है जिसके पास डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने की कैपेबिलिटी होती है। अब वो चीज क्या होती है? In this, the computer system is divided into a memory unit and number of processor. मतलब जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो मेमोरी यूनिट्स में डिवाइडेड है और बहुत सारे प्रोसेसर्स की नंबर्स में। Each IOP या इनपुट आउटपुट प्रोसेसर controls and manages the input output task. हर IOP कंट्रोल और मैनेज करता है इनपुट आउटपुट टास्क को। The IOP is similar to the CPU except that it handles only the details of input output processing. जो IOP होता है वो CPU की तरह ही होता है, बस एक जो इसका डिफरेंस ये है कि ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग की डिटेल्स को हैंडल करता है। The IOP can fetch and execute its own instructions. IOP fetch भी कर सकता है और execute भी कर सकता है अपने खुद के instructions. These IOP instructions are designed to manage input-output transfers only. ये जो IOP instruction है, इन्हें input-output transfers को मैनेज करने के लिए ही यूज किया जाता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ इनपुट-आउटपुट प्रोसेसर। Below is a block diagram of computer along with various input-output processors. The memory unit occupies the central position and can communicate with each processor. The CPU processes the data required for solving the computational task. The IOP provides a path for transfer of data between peripherals and memory. The CPU assigns the task of initiating the input-output program. The IOP operates independent from CPU and transfer data between peripherals and memory. Now this is the block diagram. Here you can see this block is memory unit. This symbol signifies IOP या input-output processor, जिसमें इस input-output processor से 3 peripheral devices connected है, 1, 2, 3, PD1, PD2, PD3, और यह है CPU। यहाँ CPU और IOP मेमोरी बस जो जिस बस से कनेक्टेड है वो है मेमोरी बस, जो डायरेक्टली मेमोरी यूनिट को कनेक्ट करती है। Now next, the communication between the IOP and devices is similar to the program control method of transfer. जो कम्युनिकेशन IOP और डिवाइसेस के बीच का होता है वो प्रोग्राम कंट्रोल मेथड ऑफ ट्रांसफर के जैसा ही होता है। एंड द कम्युनिकेशन विद द मेमोरी इज सिमिलर टू डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मेथड। और जो कम्युनिकेशन मेमोरी से हो रहा है वो सिमिलर है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मेथड के। In a large scale computers, each processor is independent of other processor and any processor can initiate the operation. बहुत बड़े-बड़े कंप्यूटर्स में क्या होता है? हर प्रोसेसर इंडिपेंडेंट होता है दूसरे प्रोसेसर के और हर प्रोसेसर कोई भी ऑपरेशन इनिशिएट कर सकता है। The CPU can act as a master and the IOP act as a slave processor. यहाँ पर CPU तो मास्टर होता है और IOP क्या होता है? स्लेव प्रोसेसर होता है। The CPU assigns the task of initiating operations, but it is the IOP who executes the instructions and not the CPU. CPU क्या करता है? वो मास्टर की तरह एक्ट करता है, पर IOP स्लेव प्रोसेसर की तरह एक्ट करता है। CPU असाइन करता है टास्क को ऑपरेशन इनिशिएट करने के लिए, पर IOP एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को और ना कि CPU. CPU instructions provide operations to start and IO input output transfer.
इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ऑपरेशंस प्रोवाइड कर सीपीयू क्या करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है जिससे स्टार्ट कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट हो सके और इनपुट आउटपुट ट्रांसफर इनिशिएट हो सके। The IOP asks for CPU through interrupt. IOP CPU से interrupt के थ्रू कम्युनिकेट करता है। Instructions that are read from memory by an IOP are also called commands to distinguish them from instruction that are read by CPU. जो instructions मेमोरी में रीड किए जाते हैं IOP के थ्रू उन्हें हम कमांड्स भी कहते हैं, उन्हें जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सके उन इंस्ट्रक्शन से जो कि सीपीयू से रीड किए जाते हैं। कमांड्स आर प्रिपेयर्ड बाय प्रोग्रामर्स एंड स्टोर्ड इन मेमोरी। कमांड्स प्रोग्रामर बनाता है और उन्हें मेमोरी में स्टोर करता है। कमांड वर्ड्स मेक द प्रोग्राम फॉर आईओपी। कमांड वर्ड्स क्या करते हैं, आईओपी के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। CPU informs the IOP where to find the commands in memory. CPU IOP को इन्फॉर्म करता है कि कमांड्स कहाँ होते हैं मेमोरी में। अब ये तो हमारा इतना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम समझते हैं कि सीरियल कम्युनिकेशन क्या चीज कहलाती है। ये सीरियल कम्युनिकेशन आपका क्या है, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, और इसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी। ओके, फ्रॉम after this topic we will be starting unit 5th. So let's study what is serial communication. Serial communication is a communication technique used in telecommunications wherein data transfer occurs by transmitting data one bit at a time in a sequential order over a computer bus or a communication channel. सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये वो कम्युनिकेशन टेक्निक है जो टेलीकम्युनिकेशन में यूज की जाती है, जहां पर डेटा ट्रांसफर किया जाता है। कैसे, डेटा को ट्रांसफर करके एक बिट करके एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में किसी कंप्यूटर बस पे या कम्युनिकेशन चैनल पे। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर। ये क्या है, कम्युनिकेशन की सबसे सिंपल फॉर्म है किसी भी सेंडर और रिसीवर के बीच की। बिकॉज ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन पैरेलल कम्युनिकेशन along with the cable cause serial communication is considered best for long distance communication. अब क्योंकि पैरेलल कम्युनिकेशन का नाम भी आपने सुना होगा, उसमें क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन डिफिकल्टीज आती है, ठीक। तो उसमें क्या, इसीलिए उसके अलावा केबल कॉस्ट भी पड़ती है हमें। तो सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, बेस्ट होता है मेथड, बेस्ट ऑल्टरनेटिव है पैरेलल कम्युनिकेशन का, जब हमें कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंसेस में करना हो, ठीक। इन कंट्रास्ट टू पैरेलल कम्युनिकेशन विच इज हाफ ड्यूप्लेक्स, सीरियल कम्युनिकेशन इज फुल ड्यूप्लेक्स। That is, transmission and receipt of signals can occur simultaneously. अगर देखा जाए पैरेलल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में सीरियल कम्युनिकेशन फुल डुप्लेक्स होता है, जहां पैरेलल कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स था। अब हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या हुआ, फुल डुप्लेक्स से मतलब हुआ कि ट्रांसमिशन और रिसीट ऑफ सिग्नल एक टाइम पे हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक। इट इज द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर मोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइसेस। ये क्या है, मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन है प्रोटोकॉल जो इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइसेस में यूज होता है। इट इज ऑल्सो पॉपुलर इन कंप्यूटर डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर किसमें है, कंप्यूटर डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस में और इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, विच आर प्रोवाइडेड विद वन और मोर सीरियल पोर्ट्स, जिसमें एक से ज्यादा सीरियल पोर्ट्स होते हैं, रिजल्टिंग इन नो एडिशनल हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। जिनसे क्या मिलता है हमें,
कोई भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं होती सीरियल कम्युनिकेशन में। ठीक, देयर आर सेवरल एडवांटेजेस विद सीरियल कम्युनिकेशन। अब इसमें ऐसी बात नहीं सिर्फ यही थोड़े बहुत एडवांटेजेस नहीं है, ऐसी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं सीरियल कम्युनिकेशन की जिनके बारे में अभी हम जान लेते हैं। As there are fewer conductors in contrast to parallel communication, the crosstalk issue is significantly less. जो सीरियल कम्युनिकेशन होता है इसमें आपके कंडक्टर्स बहुत कम होते हैं। अगर उसे देखा जाए पैरेलल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में इसमें कंडक्टर्स क्यों होते हैं, जिससे क्या होता है क्रॉस टॉक एक जो इशू आता था हमारा पैरेलल कम्युनिकेशन में वो यहाँ पर अवॉइड हो जाता है, बहुत लेस सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। इंटरकनेक्टिंग केबल्स आर फ्यूअर, यहाँ पर जो इंटरकनेक्ट करने वाली केबल्स होती हैं वो भी कम होती हैं। एंड देयर इज नो नीड फॉर अ सीरियलाइजर डीसीरियलाइजर इन एनी केस, यहाँ पर ना ही हमें कोई सीरियलाइजर चाहिए होता है ना ही कोई डीसीरियलाइजर चाहिए होता है। द डेटा ट्रांसफर रेट हाउएवर मे बी लो इन कंपैरिजन विद पैरेलल कम्युनिकेशन, लेकिन डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है यहाँ पर, मतलब डेटा बहुत स्लोली ट्रांसफर होता है। अगर इसको कंपेयर करा जाए पैरेलल कम्युनिकेशन से, वहां पर ये चीज फास्ट थी, यहाँ पर जो स्लो है। Nevertheless, the clock skew problem that often happens between different channels of communication is not an issue with serial communication. देखा जाए तो जो क्लॉक स्क्यू प्रॉब्लम थी वो कहाँ होती है, वो कम्युनिकेशन चैनल्स के बीच में थी, ठीक है, वो पैरेलल, लेकिन वो प्रॉब्लम हमारी पैरेलल कम्युनिकेशन में थी, वो यहाँ पर अवॉइड हो जाती है सीरियल कम्युनिकेशन में। कंपेयर टू पैरेलल कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन हैज बेटर सिग्नल इंटेग्रिटी। सीरियल कम्युनिकेशन की ज्यादा अच्छी बेटर इंप्रूव इंटीग्रिटी होती है बजाय पैरेलल कम्युनिकेशन की। इन एडिशन, serial communication is one of the cheapest modes of communication that can be implemented. देखा जाए serial communication सबसे cheapest mode of communication होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं, implement कर सकते हैं long distance communications के मेथड पे। It provide numerous benefits, इसलिए बहुत सारे benefits देता है। अच्छा, if you are in IT industry and looking for to understand some of the context around machine learning and how it can be useful, here are some basic and essential concepts that will help you define machine learning and role in business. ठीक, तो ये स्टूडेंट्स हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक भी आज यहाँ पर रैप अप हो चुका है। So I will teach you I will start the new unit in next lecture for